Ever since the beginning of time, ever since we were babies, a phopo is the most evil character in our life, or so everyone says. हर घर का एक तरीका होता है और ये मेरे घर का तरीका है। हर ड्रामे की विलन phopo, हर फसाद की जड़ phopo। हाँ, ये बात तो है। I mean, बच्चे के पैदा होने पे नाम पर फड्डे से लेकर शादी के कार्ड में फसाद डालने पे phoppos ही बदनाम होती हैं। And the only way I thought we can challenge these stereotypes is अगर हम उन लोगों से बात करें जिनके experiences मुख्तलिफ रहे हैं। So while we empathize with those who have had negative experiences, हमें कुछ ऐसी stories भी मिली हैं where phoppos were a positive character in people's lives. Nausheen and her phopo have a very close relationship, much unlike what we see and hear around us. But ऐसी relationships take effort from both ends, and that's the story Nausheen will share with us today. Okay, so what are we cooking today, Nausheen? We are making dawdo, and dawdo is a special dish of Hunza, Gilgit-Baltistan. अच्छा, awesome. अब मुझे बताएं इसमें क्या-क्या चीज़ें डल रही हैं? हमारे पास ingredients हैं यहाँ पे already. हाँ, ये मैंने बहुत ही सुघर तरीके से जो है well done, Kanwal. और we have chicken, we have onion, we have tomatoes, we have ginger garlic paste, black pepper, garam masala, we have turmeric, और we have gunda atta, और we have zara flour, we have vegetables, mixed vegetables, we have butter. So किस चीज़ से start करना है आप बताएं? We'll start with सबसे पहले तो हम जो है we'll switch on the stove. Okay, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले we'll put butter in it. Yeah, you can hand me that. I'll do it. Sure. कितना डालना है? इतना? हाँ, इतना. Okay. So good, great. ये अच्छा it'll take some time कि ये थोड़ा सा melt हो जाए. जैसे ये melt हो जाता है, so we'll put onions in it. Okay. Yes. एक हमने दो मीडियम साइज़ के अनियन ले लिए थे. थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे इसमें. ठीक है. So you know the reason why we wanted you on the show is because आपने मेरे साथ शेयर किया था कि आपकी पप्पो के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है. So just want to learn more about that and obviously आपके कल्चर के बारे में भी. So tell me, how is it? I feel I'm the luckiest one जिनकी इतनी अच्छी पप्पो हैं because I have been hearing के मतलब आप सोशल मीडिया पे भी ड्रामों में बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं कि पप्पो का जो वो पर्सनालिटी उसको बहुत नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता है. But in our life, I have the best phopo. We share a very beautiful bond with each other, or we are more like friends. And why do you think that is? Like, do you think that's because of the way जो आप raise हुई, या is it because आपकी पप्पो की इतनी अच्छी personality है? I mean, कुछ तो है, right? That is different because you know what? जो मीडिया पे आ रहा है या जिस चीज़ को हम देखते हैं is obviously based off real life experiences. True. बहुत सारे लोगों की बहुत valid, you know, it's very valid that they have bad experiences with their puppos, and that's why now it's become like the stereotype कि हाँ हर puppo बुरी है, which is obviously wrong as well. So, but what do you think? What was the difference in, you know, which made you guys, you know, so close and such a lovable bond? I feel Kanwal के it goes both ways. One way कभी भी कोई एक चीज़ नहीं होती, ठीक है? It's like my puppo is good. और इसका अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड लेके जाऊँ मेरे पेरेंट्स की तरफ से, मेरी वालिदा की तरफ से, माय मॉम यू नो, उन्होंने मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि बचपन से अब तक कभी भी उन्होंने मेरी फुप्पो के बारे में कोई एक चीज़, एक नेगेटिव चीज़ बोली हो. एंड आई थिंक दैट्स वेरी नाइस कि चाहे उनके बीच में भी कोई भी डिफरेंसेस हों, बच्चों पे उन्होंने कभी भी उसकी कभी ऐसा नहीं हुआ. और आई फील फैमिलीज़ में जो जनरलाइज किया जाता है कमल किसी भी पर्सनालिटी को या किसी भी रिलेशन को, आई गेस उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आप अपने फैमिली जो मैटर्स हैं आप उसमें बच्चों को इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हैं. और जो फैमिली पॉलिटिक्स है यार, किड्स आर प्योर, लाइक किड्स तो उन बच्चों से जितना उसको दूर रखा जाए ना, तो मेरे ख्याल से उतना ही आपकी फैमिली में एक हार्मनी, एक पीस एंड लव वाला इन्वायरमेंट, अंडरस्टैंडिंग वाला इन्वायरमेंट होता है. एंड यू नो व्हाट यू जस्ट सेड कि बच्चों को कभी नहीं जाके शिकायत करनी चाहिए. बड़ों के बीच में चाहे जो भी मसले पॉलिटिक्स हों, इट शुड नॉट अफेक्ट द चिल्ड्रन. अनदर थिंग हियर इज दैट समटाइम्स जैसे अगर बड़ों के बीच में हार्मनी नहीं होती तो वो गुस्सा भी बच्चों पे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स से इन सम फैमिलीज आई हैव नोटिस्ड कि अगर फुप्पो की भाभी से नहीं बन रही, नंद भाभी की नहीं बन रही, तो नंद भाभी के बच्चों को भी मिसट्रीट करती हैं. बिल्कुल ऐसा ही होता है. एंड यू नो
again, kids are pure. They don't deserve to see the bad side of anybody. So I think it's very And important you pointed that two out. इफेक्ट्स के उनकी जो बच्चों की ज़िंदगी है ना उसको भी इफ़ेक्ट कर रही होती है कहीं ना कहीं पे उनकी लाइफ में, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस उनकी पर्सनालिटी बना रहे होते हैं कमल, ठीक है। और वही एक्सपीरियंस ऑब्वियसली वट एवर दे विल फील, वट एवर दे एक्सपीरियंस, वो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वही जा रहा होता है। द वेरी बिगिनिंग मैंने कभी भी नहीं देखा उनको कि वो किसी के बारे में गलत बोल रही हैं। नाउ विल ऐड जिंजर गार्लिक पीसेस। ये हटा दो। हाँ थोड़ा सा मेरा एक ही काम है चमचा हिलाना, चमचा हटाना। क्योंकि अब हमारे लाइट ब्राउन हो गए, ठीक है। विल पुट 2 ठीक है टीस्पून हमने Doing my job well. दैट्स गुड, वेल डन, यू आर डूइंग ग्रेट। Now what do we have to add? ये भी हो गया। ये हो गया, थोड़ा सा हम इसको ज़रा पकाएंगे, पकाने के बाद विल ऐड चिकन इनटू इट। I'm really excited about this because I think आप लोग का जो cuisine है हुंजा का, that's very healthy. हाँ, इट्स वेरी हेल्दी। और जो डाउडो की स्पेशलिटी ये है कमल कि बिकॉज सिंस यू नो गिलगित बल्तिस्तान बहुत हार्श विंटर्स होते हैं ना, तो दिस कीप्स अस वार्म, और ये हमारे विंटर्स की स्पेशल डिश होती है। और जो भी आजकल तो लोग हुंजा की तरफ बहुत जा रहे होते हैं, जो भी जा रहे होते हैं तो उनको ये सबसे पहले खिलाई जाती है बिकॉज दिस इज स्पेशल डिश। Should we add the chicken? Yes, बहुत we'll brown add हो गया। chicken in it. We'll add half of the chicken. मैं ये यूज़ कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक कि I guess this all goes into it. पूरा डाल दिया? हाँ, पूरा डालेगा। This was about like I think 1 pound. हाफ kg था इसमें। हाँ, हाफ exactly kg 1 था। pound. ठीक है, तो आप अपना जॉब कर रही होंगी, ये लें प्लीज़। अच्छा हाँ, sorry. अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही होंगी, ठीक है। वैसे I'm a really good cook also. Seriously? Just yeah, I cook every day. हाँ। Almost. Do you want to put something else now? Now we'll put tomatoes in it, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा हाफ टी स्पून जो है ना, हाफ टी स्पून टर्मरिक डालेंगे इसमें। हल्दी। हल्दी, yes. I feel like this is a proper cooking show, you know, and I'm the expert, although I'm not, but I feel like the expert. Feel like you're a chef. Yeah. Yes. अच्छा, इसमें हम हाफ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर हमने डाल दिए इसमें, एंड देन वील पुट गरम मसाला। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कमल, हम इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस नहीं डाल रहे होते। हमारे जो जैसे हमारे जितने भी हुंजा के डिशेस होते हैं दे आर वेरी लाइट, उसमें हम बहुत ज़्यादा मसाले और उसको स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बना रहे होते। दे आर वेरी लाइट और लाइक एनीवन कैन यू नो हैव इट। You know, while this is cooking, tell me some memorable incident या something जिससे आप लोगों की relationship shape हुई हो। मुझे एक चीज़, जो मैं बहुत छोटी थी जब इनकी शादी हुई थी, पता है कमल, और मुझे याद है मैं ज़िंदगी में कभी इतना नहीं रोई होंगी जितना मैं इनकी शादी में रोई थी। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये पता नहीं कहाँ जा रही हैं, मतलब हमसे हमारे घर से निकल के या किसको ले जाके पता नहीं कहाँ लेके जाया जा रहा है। मुझे उस वक्त इतना कॉन्सेप्ट नहीं था शादी वगैरह का कि किसी और घर में, बस मुझे ये था कि हमसे दूर जा रही हैं। लिटरली आई क्राइड सो मच। और उसके बाद फिर ये मुझे याद है, मतलब मेरे फूफा जो है ना, मुझे उनका देख के गुस्सा आता था कि ये इनको ना घर से लेके चले गए लिटरली। तो खैर वो फिर टाइम के साथ आई डोंट रिमेंबर लाइक 7, 8, 9, 10 नहीं बल्कि 9, 10 होगा जब व्हेन शी गॉट मैरिड। तो मुझे उनको देख के बहुत गुस्सा आता था कि ये हमें ना मेरी फूफो को घर से ले गए। सो वो शुरू से ये था कि इन्हीं के साथ, और हमारा जो बचपन रहा है ना कमल, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल हु वर लिविंग इन सिटीज़। हम हुंजा में, गिलगित में बेसिकली हम रहे हैं, तो वहाँ का हमारा बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। वहाँ पे हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, तो उसमें शायद I'll give credit to my बड़े जितने भी हैं इसमें, कि अगर हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, it all the credit goes to my mom, my दादी, my बाबा and my दादी, कि हमारे घर में एक अच्छा सा environment जो रखा है ना शुरू से, that because of my दादी। फिर बच्चे वही आ जाते हैं ना, बच्चे तो वो हैं, आप उनके अंदर जो डालेंगे they are like mold, आप उसको मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं बच्चों। So what are we doing now? Almost we are done. Or we'll put a little stock in it. Should I bring it for you? Yes, please. I can do one more job other than stirring the spoon. I'll just mix it up a little. Yeah. I'll mix it up a little. और हम वो इसमें डाल देंगे ताकि थोड़ा सा और सही से ना गल जाए। अच्छा, जब तक
थोड़ा सा हम इसको 5 मिनट तक पकाएंगे एंड देन वील ऐड मोर वाटर इन इट जब तक हाँ सूपी हो जाएगा. एंड मीनवाइल वील मेक अ रोटी एंड वील मेक द स्मॉल पीसेस जो स्पैगेटी की तरह होंगे. ठीक है, वील पुट इन इट. इट्स सो सिंपल. या सो लेट्स लेट दिस कुक. ठीक है, अच्छा ये हो गया. और जब तक ये बॉईल होता है आई विल मेक रोटी. ठीक है. हाँ, so you were telling me इसका ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए. हाँ, आटा, इसका right? आटा जो है ना इसका थोड़ा हार्ड इसलिए होना चाहिए कि जब आप इसको पीसेस कट कर रहे होते हैं ना वो फिर स्टिक हो जाती हैं अगर इसका नरम होगा. जिस तरह हम पास्ता जब खरीदते हैं हाँ तो इट्स वेरी सख्त. Yes. हमें इतना भी सख्त नहीं करना. वी वांट टू कीप इट इन द मिडल. हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा सख्त हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इसको नरम नहीं होना चाहिए. अगर नरम होगा हाँ बॉयल भी होगा और ये स्टिक हो जाता है ना फिर. सो अभी आप कह रहे थे कि आप मुझे देखेंगी कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ. I'm gonna watch you make your roti. अच्छा, बेसिकली हम लोग जो ना गिलगित और हुंजा में थोड़ी बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं. ठीक है, बट सिंस अब यहाँ पे छोटी सी जगह है मैं फजूल में आस्तीन चढ़ा रही हूँ. बाय द वे मुझे कुछ काम नहीं करना, मैं फिर भी चढ़ा रही हूँ. अच्छा, हम यहाँ पे जो है रोटियां बना रहे हैं. एक ही रोटी में अभी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे हम रोटी कैसे बना रहे हैं. You know, जब हम पहले बात कर रहे थे मेकअप रूम में, you were telling me about your Phopos bond with you now, especially after you had your son. Do you want to share it? हाँ, I would love to because when he was born he had some genetic conditions. तो जिसकी वजह से my life was bit hard. So I'm still struggling with it actually. He was born with multiple fractures. He was born with bilateral talipes जिसमें पाँव अंदर की तरफ होते हैं. और then doctors told me कि नहीं, he has a genetic condition. We had a genetic test actually. तो उसमें उन्होंने बताया कि no, he has a neuromuscular condition जिसकी वजह से he won't be able to stand, he won't be able to walk in his life. So actually that was very difficult phase of my life. और वो टाइम था कि जब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फैमिली में कभी उस बेटे को लेके ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे नेगेटिव बात बोली हो. बट देयर आर सम पीपल इन योर फैमिली जिनसे आपका कनेक्शन बन जाता है. एज आई सेड मेरी पुप्पा के साथ ऑलरेडी कनेक्शन था, लेकिन इस फेज़ में शी यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे. जब भी मैं हॉस्पिटल जाऊँ या हॉस्पिटल से वापस आऊँ, कैसा रहा, अहियान की तबीयत कैसी है, आर यू फीलिंग ओके. सो वो एक I could feel the warmth, I could feel that वो in her voice जब भी वो बात करें तो लगता था कि वो दिल से उनकी बातें निकल रही होती. तो वहाँ से मुझे लगता है हम लोग का बॉन्ड जो है ना और स्ट्रॉन्ग हुआ. She would never call my son Ahyan, his name is Ahyan actually. She would always, how is champion. तो हमेशा से यही होगा कि हाँ चैम्पियन कैसा है, चैम्पियन ठीक है. और शी विल ऑलवेज से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा, यू आर स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह. तो हमेशा वो पॉजिटिविटी, मुझे वो वाइब्स जो है ना पॉजिटिव वाइब्स और हमेशा उन्हीं से मिलती होती है. She was there for you, right? She is always there. तो once a doctor he suggested कि नहीं आप लाहौर जाएं. तो मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि मैं इस बेटे को लेके जाऊँ, that would be more difficult for me. But she said तुमने मतलब सोचा कैसे, कोई दूसरी मतलब कोई और दिमाग में आया कैसे. अगर डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें लाहौर आना है तो आओ, मैं हूँ यहाँ पे, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, मैं करूँगी सब कुछ, मैं उठाऊँ. दीज थिंग्स जब आपको कोई ऐसा बोले ना तो मतलब आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है, आपको एक एनर्जी मिलती है. तो वो मुझे मेरी फुप्पो की तरफ से मिली अल्हम्दुलिल्लाह. एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू माई गॉड कि ये रिलेशनशिप्स हैं आपकी लाइफ में जिनको आप चेरिश कर सकते हैं, जिनके थ्रू मतलब आप अगर वहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है ना कमल, तो आपके थ्रू भी पॉजिटिविटी निकल रही होती है अगर आपको पॉजिटिविटी मिल रही होती है. सो मेरी पापा बहुत खुश हो रही होंगी इस वक्त. हाँ. अच्छा, हमने ये रोटी बना ली. अभी हम इनको कट कर रहे होंगे. ठीक है, अब लेंगे नाइफ एज वेल, मुझे कोई मसला नहीं है. ठीक है. अच्छा, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको ज़रा सा इसके ऊपर ऑयल फ्लावर लगा देते हैं ताकि वो स्टिक ना हो ना. ओके, सो नाउ विल कट. अच्छा, हमारे वहाँ के जो कुछ हैं, इट्स लिटरली सो थिन. यस, मेरे माइंड में आ रहा था कि हम बड़े बड़े पट्टे लाइक टाइप काटेंगे. नो, दे आर थिन. सी दिस इज हाउ. अब इसको सो इट्स बेसिकली बिकम लाइक दीज यस स्ट्रिंग्स. दैट्स वेरी कूल.
अच्छा ये तो जितना हमने like 1 pound chicken यूज़ किया तो 3 रोटी should be fine. 3, हाँ इट डिपेंड्स आप कितनी बड़ी और कितनी छोटी रोटियां बना रहे हैं। और हमें vegetables भी डालने हैं ना हाँ अपने? अभी बल्कि अभी डाले हुए वेजिटेबल्स, थैंक यू Yes. फॉर रिमाइंडिंग। इसमें मेरा एक- हाँ Half? हाफ डाल देंगे हम इसमें, ठीक है, जब तक मैं इसको ये कितनी देर तक पकेगा? 5 to 10 मिनट्स। अच्छा जैसे ही मैं डालूंगी आप स्टिर करेंगे, सही। ठीक है, हल्की I'm ready with my spoon. गुड। चलें आप स्टिर करें। अच्छा, so you basically want to make sure कि ये चिपके ना हाँ अंदर जाके. चिपके ना। तो ये हो गया। So how is your son now? ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग बेटर, लेकिन बस वही है कि अभी तक वी आर स्ट्रगलिंग विद स्टैंडिंग। हम इसकी फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह करा रहे हैं अभी, बट डॉक्टर्स आर नॉट मच श्योर, वो कोई अच्छा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। बट सेंस यू नो एक मदर की एक इनर फीलिंग होती है ना, नो शी इज़ नेवर गोइंग टू क्विट, शी हैज़ टू, यू नो, उसने कोशिश करनी है, यू नो सम, जब आपके अंदर उम्मीद होती है ना, आप जब वो उम्मीद रखते हो तो अब चीज़ें खुद ब खुद हो जाती। जब आपका तवक्कुल ऊपर वाले पे होता है ना कि अल्लाह ताला ने दिया है और अल्लाह ताला ही मेरे लिए रास्ते बनाएगा, तो दैट टाइम वाज टू डिप्रेसिंग, आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट टाइम, सो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रॉमा इन माई लाइफ। तो तब यू नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सजेस्टेड के नौशीन देयर इज़ अ ग्रुप सोल सिस्टर्स के नाम से, शी वाज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ सोल सिस्टर्स, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप उस ग्रुप का मेंबर बनिए, यू विल फील गुड, यू विल स्टार्ट राइटिंग हाउ यू फील, यू स्टार्ट शेयरिंग हाउ यू फील, तो वहाँ से आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे। एंड शी वाज राइट। सो उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड शेयरिंग माई स्टोरी कंवल, तो वहाँ से मुझे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स मिले, और यू नो दे आई कुड से दैट दे वर द फ्यूल टू माई एनर्जी। तो उसके बाद का जो मेरा सफ़र रहा, दैट वाज अमेजिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। No, you're most Thank you welcome. I so think the much. best thing is कि even अगर आप अपनी स्टोरी नहीं भी लिख रहे होते तब भी you can see other people who are in similar situations. अब आपकी स्टोरी पढ़ के आप सोचें कितने सारे लोग इंस्पायर हुए होंगे. अच्छा इट्स कुकिंग, मुझे से लगता है अभी 2-3 मिनट और लगेंगे थोड़ा सा इसका Okay. कुक होने में। So I'm getting you the soup bowl as your loyal assistant. You have to turn off the stove. Yes, I will. I have done. It's okay. Here, आप ही कर लें. आपको क्या लगता है मैं इसमें बहुत माहिर हूँ? Thank you so much for bringing me the chamas, by the way. And I'm really also excited कि हम डाउरो जो try out करेंगे अभी. This is so good, by the way. बहुत मज़े का. It's It's all natural, it's dry apricots. That's really cool. आंटी आपको याद है कोई नौशीन के बचपन के दिन या कोई ऐसी मेमोरी जो बहुत अभी तक you know fresh हो माइंड में? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। इवन कि मुझे नौशीन के पैदा होने का जो दिन था वो भी मुझे याद है। ये जब पैदा हुई थी तो मैं भाभी के साथ, मैं और अम्मी थे हॉस्पिटल में। तो तब हुआ ये था कि 10 मुहर्रम था, और 10 मुहर्रम को आपको पता है बाहर जुलूस निकलते हैं, ये वो बिल्कुल हॉस्पिटल के बाहर जुलूस निकल रहा था। बाहर वो शोर था और सड़कें वगैरह सारी बंद थी, तो भाई नहीं पहुंच सके थे वहाँ हॉस्पिटल में। तो मैं और अम्मी थे, और जब ये पैदा हुई थी तो सबसे पहले मैंने उसको उठाया था। That is so cute. You told us this story also. और अब आप लोगों की कैसी रिलेशनशिप है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। जब मुझे कोई तकलीफ़ होती है, मुझे कोई मसला होता है, तो सबसे पहले शेयर करने के लिए मुझे जो नाम जहन में आता है वो नौशीन होती है। तो ये मेरे खुशकिस्मती समझ लें कि मुझे इतनी अच्छी भतीजियाँ मिली हैं। इवन के भतीजियों से पहले भाभियाँ मुझे अच्छी मिली हैं, भाभियों से पहले मुझे भाई बहुत अच्छे मिले, और भाभियों से पहले अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप ने मेरा बहुत ख्याल रखा है। शायद एक पूरा एक चेन बन गया है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ।